السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن میں طالبان حکام نے دونوں جانب سے سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ منگل کی صبح جب دونوں جانب سے معمول کے مطابق لوگ سرحد پار کرنے پہنچے تو سرحد کی اچانک بندش کے باعث انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے چمن کی سرحد پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اسپن بالدک نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد باب دوستی اس وقت تک بند رہے گی جب تک پاکستان انتظامیہ سرحد پار کرنے والے افراد کے لیے مشکلات میں کمی نہیں کرتے۔ سرحد کی بندش سے جہاں پیدل آمد و رفت کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دونوں جانب تاجروں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرحد پر ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد حکام اور افغان طالبان کے درمیان باب دوستی کھولنے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن سرحد کب تک کھلے گی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان فورسز نے دکندی صوبے میں ہزارہ نسل کے 13 افراد کو غیر قانونی طور پر قتل کر دیا ہے، جن میں ایک 17 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے سابق حکومت کے سیکیورٹی فورسز ارکان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہلاک کیے جانے والوں میں 11 ارکان سابق سیکیورٹی کے ارکان تھے اور 2 شہری تھے۔ یہ کارروائی 30 اگست کو خیدیڈ ضلع میں کی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کیلیمارٹ کے مطابق یہ قتل جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ ظالمانہ قتل اس بات کا ثبوت ہیں کہ طالبان وہی ہولناک کارروائیاں کر رہے ہیں جو وہ اپنے پچھلے دور میں کرتے رہے ہیں۔ تاہم طالبان کا اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان نے 15 اگست کو کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاسپورٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر عالم گل حقانی نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محکمے نے افغانوں کو دوبارہ پاسپورٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 25,000 پاسپورٹ جاری ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال نئے پاسپورٹ مروجہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ٹائٹل کے ساتھ ہی جاری کیے جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وزارت کے پاس 10 لاکھ تیار شدہ پاسپورٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سعید خوستی نے کہا کہ خواتین سمیت تمام سابقہ عملہ کام پر واپس آ رہا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر نے بگرام ایئر بیس میں افغانستان میں چینی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے ٹویٹ کیا کہ چینی افواج کے بگرام ایئر بیس پر موجودگی کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے افراد کے اپنے مقاصد ہیں۔ بگرام ایئر فیلڈ افغانستان میں امریکی قیادت والے نیٹو مشن کا کلیدی اڈہ رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے سے دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے سابقہ خاصے دار فورسز کے ان اہلکاروں کے لواحقین نے حکومتی عہدیداروں کی یقین دہانی پر صوبائی اسمبلی کے سامنے معاوضے کی ادائیگی کے لیے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا ہے۔ مظاہرین کے سربراہ پرویز خان آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر قانون فضل شکور خان کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے ایک ہفتے کے اندر وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے اور مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ضلع خیبر سے ممبر قومی اسمبلی اقبال آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وفاقی سطح پر قومی اسمبلی کی 3 مختلف کمیٹیاں خاصے دار فورسز کے دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی سمیت بہت سے معاملات اور مسائل کے حل کے لیے صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اقبال آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جہاں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے،
वहीं मुल्क में तैयार की जाने वाली बरामदी अशिया की पैदावारी लागत में भी इजाफा हो जाता है। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने वाले सरकारी इदारे नेपरा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में पुराने बिजली घरों, गर्दिशी कर्जों, कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बेहतर मनसूबबंदी के फुकतान की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है, जिसका असर आम आदमी से लेकर माशी तरक्की की रफ्तार सब पर पड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि मसले के हल के लिए एक जानिब जहां मुल्क को तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पन बिजली पर इन्हिसार बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वहीं गर्दिशी कर्जों के जाल से निकलने के लिए पॉलिसी की भी ज़रूरत है, जो गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर 3,000 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है। उनका कहना है कि इस मकसद के लिए निजी शोबे में चलाए जाने वाले बिजली घरों से दोबारा मुआहदे करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें इस बात पर कायल किया जा सके कि वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में इन बिजली के यूनिट्स की कीमत वसूल नहीं करेंगे जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर म्यांमार फौजी हुक्मरान मुल्क के गहरे बहरान को हल करने में ब्लॉक के खुसूसी नुमाइंदे के साथ ताउन करने से इनकार करते हैं, तो उसे जनूब मशरक़ी एशियाई रहनुमाओं के सरबराही इजलास से खारिज किया जा सकता है, जो इसी माह मुनक़िद हो रहा है। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की 10 रुकनी तंजीम में म्यांमार भी शामिल है। तंजीम ने ब्रुनाई के वज़ीर ख़ारजा दोम एरवान यूसुफ को फरवरी में फौजी कब्जे के बाद अपना खुसूसी एलची और सालिस मुंतखब किया था। यूसुफ मुबैना तौर पर अभी भी दौरे की शराइत पर म्यांमार की फ़ौज से बातचीत कर रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्लाह ने कहा कि उन्होंने पीर के रोज़ अपने आसियान हम मनसबों से मुलाकात के दौरान मायूसी का इजहार किया कि म्यांमार के हुक्काम ने यूसुफ के साथ ताउन नहीं किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पीर को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो मुल्क के लिए कर्जों की हद बढ़ाने के लिए डेमोक्रेट्स की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। कर्जों की हद बढ़ाने का मकसद 18 अक्टूबर को मुल्क को मुमकिना दिवालिया होने के खतरे से बचाना है, क्योंकि 18 अक्टूबर को हुकूमत के पास अपने अखराजात के लिए रकूम मुमकिना तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। सदर जो बाइडन ने कहा कि वो इस बात की जमानत नहीं दे सके कि अमेरिका पहली मर्तबा डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उनके बकौल इस बात का इन्हिसार सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल पर है कि वो सेनेट में डेमोक्रेट्स को अपने तौर पर कर्जों की मौजूदा हद 28.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाने की इजाज़त दें। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कैन ब्रेडमेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने पीर को व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपब्लिकन्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मुल्क को बचाने में मदद नहीं करते तो रास्ते से हट जाएं, उसको तबाह न करें। सदर बाइडन के बकौल अगर हुकूमत कर्जों की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स पर होगी। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल ने पीर को व्हाइट हाउस को एक ख़त लिखा है, जिसमें इस अज़्म का इरादा किया गया है कि रिपब्लिकन्स मुल्की कर्जे के मामले पर तात्तुल दूर करने में डेमोक्रेट्स की मदद नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पेरिस में फ्रांसीसी हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी के तनाज़े के बाद दोनों इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। ब्लिंकन प्रोग्राम के मुताबिक आज मंगल को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जॉन एवेले ड्रियान और फ्रांसीसी कौमी सलामती के मुशीर एमानुएल बॉन के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। न्यूजीलैंड कोविड-19 के खात्मे की अपनी स्ट्रेटेजिक तर्क कर रहा है। पीर के रोज़ वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा कि ये तब्दीली इस अंदाज में की जा रही है जो हम वक्त के साथ साथ इख्तियार करते जा रहे हैं। बकौल उनके डेल्टा वेरिएंट ने तब्दीली के अंदाज को तेज तर कर दिया है। वैक्सीन्स उसकी मदद करेंगी। जॉन हॉपकिंस के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर ने पीर की सुबह तक न्यूजीलैंड में कोविड-19 की इन्फेक्शंस के 4,383 केसेस और 27 अमवात की इत्तला दी। न्यूयॉर्क सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों में काम करने वाले हर कारकुन के लिए कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन लाजिम करार देने का हुक्म
स्पीड से नाफिज हो गया है। स्कूलों के अहदेदार ये जायजा ले रहे हैं कि जिन मुलाजमीन ने इस हुक्म की तामील नहीं की है उनकी जगह कितने मुतबादिल असातिज़ा और स्टाफ मेंबर्स मुतय्यन करने की ज़रूरत है। जॉन हॉपकिंस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक रूस ने आलमी वबा के आगाज से अब तक कोविड-19 से तकरीबन 2,05,000 अमवात की खबर दी है। रूस में कोरोना वायरस से लगभग 75 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं। बरतानिया में जिसकी आबादी 6 करोड़ 70 लाख है, आलमी वबा के आगाज से अब तक 79 लाख लोग मुतासर हुए हैं, जो यूरोप में इस वबा से मुतासर अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। समुद्री तूफान शाहीन से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है। ओमान में हुक्काम ने पीर को कहा कि उन्हें एक ऐसे शख्स की लाश मिली है जो सैलाब के पानी में अपनी गाड़ी बह जाने से लापता हो गया था। इससे एक रोज कबल एक बच्चा इसी तरह डूब गया और एशिया से ताल्लुक रखने वाले 2 गैर मुल्की लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर हलाक हो गए। मुल्की कौमी कमेटी बराए एमरजेंसी मैनेजमेंट ने पीर की सपहर तूफान से 7 इजाफी अमवात का ऐलान किया, लेकिन तफसील नहीं बताई। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी IRNA ने बताया कि इमदादी एहलकारों ने उन 5 में से 2 माहीगीरों की लाशें बाजियाब की हैं जो पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ देहात पासा बंदर से लापता हो गए थे। समाजी राब्ते की साइट फेसबुक और उसके दीगर प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज पीर को लगभग 6 घंटे तक बंद रहने के बाद सारिफीन के लिए बहाल हो गई हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शब तकरीबन 9 बजे दुनिया भर में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के सारिफीन को सर्विसेज तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लगभग मंगल की सुबह 2:45 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सर्विसेज दोबारा बहाल हुई। फेसबुक ने मंगल को अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में सर्विसेज की बंदिश की वजह बताते हुए कहा है कि उनके इंजीनियर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में बाज़ तब्दीलियों के दौरान नेटवर्क मुतासिर होने की वजह से सर्विसेज बंद हुई। फेसबुक के मुताबिक सर्विसेज की बंदिश के दौरान सारिफीन का डेटा मुतासिर होने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और अब तमाम सर्विसेज मामूल की तरह बहाल हो गई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।